بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گیٹ مور آفیشیل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا بھر میں باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو نجومی نے کہا کہ وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ اس پر نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہو گئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بیماری لاحق ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس غار کو پتھروں کے ساتھ بند کر دیا اور اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ ناظرین، کبھی کبھار چھپ چھپا کر ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئیں اور واپس جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اماں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتی کیونکہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور غار سے باہر نکل آئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دیکھ لیا تو ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ تو آزر نے پوچھا، یہ کون ہے جو بچ گیا ہے؟ ناظرین، کچھ روایت میں آزر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق بتایا گیا ہے۔ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا، تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا۔ آزر ایک اچھا بت تراش ہونے کی وجہ سے نمرود کے ہاں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم علیہ السلام سے سرشار کر دیتا۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد آزر ان کو بت فروخت کرنے کے لیے دینے لگا، جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے، کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا؟ اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبو دیتے اور کہتے، پانی پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آ گیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد آزر عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا
कि आजर के घर एक लड़का जिसका नाम इब्राहिम है, ये हो ना हो ये इसी का काम है। नमरूद ने आजर को बुलाया और कहने लगा कि तूने मेरे साथ खियानत की है और मुझसे इसे छुपा कर रखा है। तो आजर कहने लगा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर ये सब इसकी माँ का कसूर है। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा को दरबार में बुलाया। वो कहने लगी कि मैंने ये काम तुम्हारी राया की भलाई के लिए किया है, क्योंकि तू सबके बेटों को मार डालता है, और अगर ये वही लड़का हुआ कि जिसके पैदा होने का तुझे खौफ था तो तू इसे मार डाल और सारी राया के बेटों को बख्श दे। लेकिन अगर ये वो ना हुआ तो मुझे मेरा बेटा सही और सलामत मिल जाएगा। नमरूद को ये जवाब ठीक लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, बुतों को किसने तोड़ा है? तो वो कहने लगे कि बड़े बुत से पूछो, ये उसी का काम होगा। हाँ, मगर अगर वो बोलने लगे। तो नमरूद ने अपनी कौम से मशवरा किया। इसकी कौम कहने लगी कि इसे आग में जला डालो। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया और हुक्म हुआ कि बड़ी आग लगाई जाए। इसके लिए नमरूद के इबादत गुजारों ने हर तरफ ऐलान किया कि जिस जिसको अपनी मुराद पूरी करनी है वो इतनी ज्यादा लकड़ियां लेकर आए, और जो शख्स जितनी ज्यादा लकड़ियां लाएगा उसकी मुराद उतनी जल्दी पूरी होगी। लिहाजा हर तरफ से और हर इलाके के लोग ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां और ईंधन इकट्ठा करना शुरू हो गए। लकड़ियां जमा की गईं। जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाना था, इस रोज नमरूद खुद भी आया और इसके बैठने के लिए एक ऊंची जगह पर इंतजाम किया गया, मगर तपश इतनी ज्यादा थी कि कोई आग के करीब ना जा सकता था। इस वक्त शैतान एक आदमी के रूप में आया और कहने लगा, मंजनीक बनाओ और इसे आग में डाल दो। और वहां आजर हजरत इब्राहिम को कहने लगा कि अपनी फिक्र से बाज आ जा, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ टलने वाले थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाला गया तो उस वक्त तमाम चीजों ने फरियाद की। जमीन कहने लगी, या परवरदिगारा, मुझ पर इसके अलावा कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं, तो क्या तू राजी है कि लोग इसे आग में जला डालें? फरिश्ते बोले, ऐ परवरदिगार, तेरे खलील को लोग जलाते हैं, तो क्या तुम खलील की मदद ना करोगे? तो परवरदिगार ने कहा कि अगर वो मुझसे मदद तलब करे तो मैं जरूर इसकी मदद करूंगा। यहाँ आप मंजनीक से जुदा हुए तो वहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हवा में आपसे मुलाकात की और कहने लगे, मुझसे कोई हाजत है तो तलब करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुझसे मुझे कोई हाजत नहीं, हाँ मगर परवरदिगार से जरूर है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी थमाई और अल्लाह ने आग पर वही की कि सर्द हो जा, और इसी लम्हे आग सर्द हो गई। और परवरदिगार ने कहा, सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझ पर हमारा सलाम हो। वहाँ जिब्राइल आए और आपके साथ गुफ्तगू में मसरूफ हो गए और इनके चारों तरफ गुलो लैला पैदा हो गए। जब नमरूद ने यह मंजर देखा तो वो बेसाख्ता कहने लगा कि अगर कोई खुदा इख्तियार करना चाहे तो इब्राहिम जैसा खुदा इख्तियार करे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर ये पूछने लगा कि तेरा खुदा कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वही जो जिंदा करता है और वही जो मौत देता है। इस पर नमरूद हंसने लगा और कहने लगा कि जिंदगी और मौत पर तो मैं नमरूद भी हाकिम हूँ। इसने जिंदान से 2 कैदियों को बुलाया। एक कैदी जिसे कल सजाए मौत होने वाली थी उसे आजाद कर दिया, और जिसे कल आजादी मिलने वाली थी उसने उसे कत्ल कर दिया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगा, एक को मैंने जिंदगी बख्शी और एक को मैंने मौत बख्श दी। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आया और कहने लगे, मेरा परवरदिगार मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज तुलू करके दिखा। और इस तरह नमरूद जलील और रुसवा हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। एक दिन नमरूद ने बहुत ऊंचा मीनार बनवाया और कहने लगा कि मैं इब्राहिम के खुदा को कत्ल कर डालूंगा, और इस मीनार पर चढ़ा और हवा में तीर चलाया। अल्लाह ने इस तीर पर एक मछली लगाकर वापस भेजा और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने इब्राहिम के खुदा को कत्ल कर डाला है। इसी दौरान एक मच्छर इसके नाक के जरिए इसके सर के अंदर तक जा पहुंचा और इस मच्छर ने नमरूद को पागल कर दिया। नमरूद को इस दर्द से छुटकारा सिर्फ इसी सूरत में मिलता था कि जब भी नमरूद के सर पर जोर जोर से जूते मारे जाते
तो इस तरह इसको इस दर्द से सुकून मिल जाता। कुछ अरसे बाद इस वजह से ही नमरूद की मौत वाक़या हो गई। नमरूद के मर जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती को छोड़ा और पूरी दुनिया में दीन हक की तबलीग के लिए निकल पड़े। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन खुदा की तबलीग के लिए दुनिया में निकले तो इस दौरान आपने शाम में क़याम किया। वहाँ वो अपनी बीवी हाजरा और सारा सलामुल्लाह अलैहा के साथ रहने लगे। जब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो सारा को शदीद गम हुआ, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई भी फर्जंद इनके शिकम में ना था। फिर वो हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बारगाह इलाही में सारा की शिकायत की तो हुक्म हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। आपने अर्ज की कि खुदावंदा इनको किस जगह ले जाऊं? फरमाया कि मेरे हरम की जानब ले जाओ, इस जगह के जिसको मैंने अमन की जगह करार दिया है, कि जो शख्स इसमें दाखिल होगा वो बेखौफ रहेगा, और वो जमीन का पहला हिस्सा है जिसको मैंने खलक किया है, और वो जगह मक्का है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके लिए सवारी लाए और हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर सवार करके मक्का की जानब रवाना हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जगह दरख्त और नखलिस्तान देखते तो दरियाफ्त करते, ऐ जिब्राइल क्या ये वो जगह है? तो जिब्राइल कहते नहीं, बल्कि दूसरी जगह है। यहाँ तक कि मक्का जा पहुँचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको खाना काबा में उतारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा सलामुल्लाह अलैहा से अहद लिया था कि सवारी से ना उतरेंगे जब तक इनके पास वापस ना आ जाएं। जब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर उतरे तो वहाँ एक दरख्त था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस लौटने लगे तो हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, हमको इस बेआबो गया मुकाम में किसके सहारे छोड़े जाते हैं जहाँ कोई मुअन्नस व गम ख्वार नहीं है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके सहारे छोड़ता हूँ कि जिसने मुझे हुक्म दिया है कि तुमको इस जगह पहुँचा दूँ। ये कहकर आप वापस रवाना हो गए। जब एक पहाड़ पर पहुँचे तो मुड़कर हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा और खुदावंदा मुताल से ये गुजारिश की कि अपने फर्जंद को इस वादी में जहाँ पानी नहीं, जहाँ सब्जा नहीं, तेरे खाना मोहतरम के नज़दीक आबाद किया है, इसलिए कि ए पालने वाले वो नमाज कायम करें। लिहाजा कुछ लोगों के दिलों को उनके लिए फेर दें कि वो इनकी तरफ माइल हों और इनके तालिब हों और इनको मेवे नसीब हों ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। यह कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम इस जगह पर रह गई। जब सूरज बुलंद हुआ और हजरत इस्माइल को प्यास लगी तो हाजरा बेकरार हो गई, उठी और इस वादी में सफ़ा और मरवा के दरमियान गई और फरियाद की कि क्या कोई इस वादी में है, और दौड़ते हुए एक पहाड़ की जानिब गई। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी आंखों से ओझल हो गए तो जनाब हाजरा कोहे सफ़ा पर गई। वहाँ से मरवा की जानिब एक सैराब नजर आया तो समझने लगी कि वो पानी है। वहाँ से मरवा की जानिब गई। जब वहाँ पहुंची तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर निगाहों से पोशीदा हो गए। हजरत हाजरा बेचैन होकर यहाँ से वहाँ दौड़ने लगी। फिर मरवा पर पहुंची, इस सैराब को गोया सफ़ा की जानिब देखा और सफ़ा की तरफ रवाना हुई। फिर जब ऐसी जगह पहुंची जहां से इस्माइल अलैहिस्सलाम दिखाई न दे तो दौड़कर इस मुकाम पर पहुंची कि जहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आने लगे। इसी तरह 7 मरतबा सफ़ा और मरवा की जानिब दौड़ी। जब 7वीं दफ़ा मरवा पर पहुंची और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जानिब निगाह की तो देखा कि पानी इनके पैरों के नीचे से जारी है। तो जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास दौड़कर आईं और पानी के गिर्द 4 दीवारी बनाई और कहने लगी, जमजम यानी ठहर जा, ठहर जा। इसी सबब से इस पानी का नाम जमजम रखा गया।